Everyone, today we are going to start another exercise of chapter 11, exercise 11.4. Till now we have learned that how we can form expression from the given statement. Like if 5 is added to x, means 5 जाके plus हो रहा है x में. 5 is subtracted from x, means x minus 5. 5 multiplied by x, x divided by 5. So in this way we have learned that how we can frame expression from the given statement. Now we will be doing some questions of exercise 11.4. In 11.4 the first question is answer the following. Take Sarita's present age to be y years. Okay. So let Sarita's present age be y years. Okay, this is as per the question. Now first part is what will be her age 5 years from now. आज से 5 साल बाद उसकी एज कितनी होगी. सो आंसर ऑफ फर्स्ट पार्ट 5 years from now. आज से 5 साल बाद. Sarita's age. What will happen? Like present, if presently she is y years, so after 5 years she will be y plus 5 years. Now similarly second part, what was her age 3 years back? So we will write back मतलब पीछे जाना है. 3 years back Sarita's age, प्रेजेंट के अकॉर्डिंग पीछे जाएंगे हम लोग. ठीक है, प्रेजेंटली इट्स y, सो 3 years बैक इट विल बी y minus 3 years. नाउ कमिंग टू अ थर्ड पार्ट. थर्ड पार्ट में क्या है? सरिता's ग्रैंडफादर इज 6 times her एज. उसकी एज के 6 times सरिता के ग्रैंडफादर है. सो सरिता's ग्रैंडफादर is equal to 6 multiplied by y, which is 6y years. Now next is grandmother is 2 years younger than grandfather. जो grandmother है वो grandfather से 2 years younger. younger मतलब छोटे. छोटे तो हमें माइनस करना है. Then Sarita's grandmother who is 2 years younger than grandfather. तो grandfather से हमने 2 साल कम कर दिया है. Then fifth part, Sarita's father age is 5 years more. 5 years more लग गया means plus 5. More than 3 times Sarita's age. Sarita's की एज के 3 times करने पे और 5 ज्यादा करने पे we will get the age of her father. So Sarita's father's age, एज लिख देंगे हम लोग यहाँ पे. Sarita's father age is equal to 3y plus 5 years. So in this way, if it is given younger तो हमें माइनस करना है. टाइम्स दिया हुआ है then we have to multiply. more means plus. तो कुछ वर्ड्स है जिनको हमें ध्यान रखना है और उसके अकॉर्डिंग हम अपने एक्सप्रेशंस बनाएंगे. नाउ वी विल लुक एट बी पार्ट. दिस इज ए पार्ट. देन बी पार्ट. द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल इज 4 मीटर लेस देन. एक रेक्टेंगुलर हॉल हम बना लेते हैं. एक लेंथ है इसकी और एक ब्रेथ है. सो व्हाट इज गिवन दैट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर हॉल इज 4 मीटर लेस देन 3 times द ब्रेथ. If breadth is b, then length will be 4 less. 4 less means minus 4. किससे 4 less होना चाहिए? 3 times the breadth. 3 times the breadth means 3b. उसमें से 4 कम होना चाहिए. So this we have done in rough. So it is given. What is the length if the breadth is b meter? Then let the breadth is equal to b meters. Therefore, length is equal to 3b minus 4. स्टेटमेंट क्या है? 4 लेस देन
3 times the breadth. Okay, 3b minus 4 meters. Now similarly we will look at C part. A rectangular box has height h centimeter. Its length is 5 times the height and breadth is 10 centimeter less than the length. Box है, ठीक है. Box means they are talking about a 3D shape. तो 3D शेप की 3 चीजें होती हैं, लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. सो व्हाट दे आर सेइंग, अ रेक्टेंगुलर बॉक्स हैज हाइट इज इक्वल टू h सेंटीमीटर. तो हाइट कितना है, h सेंटीमीटर है. ओके, देन इट्स लेंथ इज 5 टाइम्स द हाइट. लेंथ जो है दैट इज 5 टाइम्स द हाइट एंड ब्रेथ इज 10 सेंटीमीटर लेस देन द लेंथ. 10 सेंटीमीटर लेस किससे, लेंथ से. सो दीज आर द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट. हाउ वी विल राइट इट, हाइट ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू h सेंटीमीटर. देन लेंथ इज गिवन, लेंथ ऑफ बॉक्स इज इक्वल टू 5 into h, that is 5h centimeter. Then breadth of box is equal to 5h minus 10 centimeter. So in this way we have done all the solutions. Now similarly we will look at D part. D part में क्या है, मीना, बीना एंड लीना आर क्लाइंबिंग द स्टेप्स ऑफ द हिल टॉप. ठीक है, हिल टॉप है कोई, वहां पे लीना, बीना एंड मीना दे आर क्लाइंबिंग. Okay, now what is given, Meena is at step X. For example, Meena's step is equal to X. Then Beena is 8 steps ahead. Beena's step ahead मतलब आगे जाना. So she must be X plus 8. And ये हमने बीना का 8 स्टेप अहेड है एंड लीना इज 7 स्टेप्स बिहाइंड. लीनाज स्टेप एंड ऑल आर गिवन विद रिस्पेक्ट टू मीना. सो 7 स्टेप्स बिहाइंड मीन्स -7. नाउ वेयर आर बीना एंड मीना. पूछा है कि बीना कहाँ है और लीना कहाँ है, इन दोनों का हमें बताना है स्टेप्स. द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स टू द हिल टॉप इज 10 लेस देन 4 times what Meena has reached. अगर टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स का पूछा जाए, टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स, इसके लिए क्या दिया हुआ है, द टोटल नंबर ऑफ स्टेप्स इज 10 लेस मीन्स -10. किससे 10 लेस करना है, 4 times what Meena has reached. मीना के 4 टाइम्स, दैट इज 4x minus 10. So these are the expressions. ये हमने सबकी पोजीशन बता दी है. Now next last is E part. E part में क्या है, a bus traveled v किलोमीटर per hour. So let's look at the E part. Distance traveled कितना है उनका, v किलोमीटर. ठीक है, in 1 hour. Time is 1 hour. So speed is equal to distance upon time, v किलोमीटर per hour. This is speed. v को हम 1 से डिवाइड करेंगे, that will be v only. Now the question is, it is going from दासपुर to बीसपुर. ये देखिए दासपुर है, बीसपुर है, तो यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है v किलोमीटर पर आवर है. After the bus has traveled 5 hours, बीसपुर is still 20 किलोमीटर away. मतलब यहां से 5 किलोमीटर 5 आवर्स तक बस ने ट्रेवल किया. ठीक है, कुछ दूर गए, लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ है बीसपुर. ठीक है, 5 आवर्स तक ट्रेवल किया, स्टिल यहां तक पहुंचने के लिए 20 किलोमीटर बच रहा है. आफ्टर ट्रेवलिंग टू 5 आवर्स स्टिल 20 किलोमीटर इज लेफ्ट. वेयर व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम दासपुर टू बीसपुर. अब दासपुर से बीसपुर की हमें डिस्टेंस बतानी है. देखिए ये हो गया हमारा टाइम, ये हो गई हमारी स्पीड.
ठीक है, अब हमें ये देखना है कि सपोजिंगली इस पॉइंट का नाम मैंने दे दिया ए। दोबारा इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिए। जो बस है वो v किलोमीटर जाती है 1 घंटे में, मतलब बस की जो स्पीड है दैट इज v किलोमीटर पर आवर। अब दासपुर से बीसपुर तक जाने में पहले वो 5 घंटे ट्रेवल की, उसके बाद भी 20 किलोमीटर बच रहे थे। तो पहले हमें ये देखना है कि यहां से यहां तक कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है उसने। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फ्रॉम D to A इज इक्वल टू 5 इंटू वी। अब मैंने ये 5 इंटू वी क्यों किया है, क्योंकि डिस्टेंस, जैसे हमें पता है फॉर्मूला क्या है, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। सो डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। सो स्पीड कितना है v और टाइम कितना है 5, तो ये कितना हो गया 5v। नाउ डिस्टेंस फ्रॉम D मीन्स दासपुर टू बीसपुर इज इक्वल टू 5v, तो यहां तक हो गया, प्लस 20 किलोमीटर। तो हमारा पूरा डिस्टेंस कितना हो गया 5v प्लस 20 किलोमीटर। अब इसको ध्यान से देख लीजिए, ये डिस्टेंस हमें पता थी 20 किलोमीटर, ये नहीं पता थी, यहां तक का टाइम पता था। तो टाइम और स्पीड को मल्टीप्लाई करके मैंने इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकाली। डिस्टेंस विल नॉट कम इन एग्जैक्ट वैल्यूज, इट विल कम इन द फॉर्म ऑफ v। सो डिस्टेंस फ्रॉम दासपुर टू बीसपुर इज 5v plus 20 kilometer. Now we will look. Now after first question we will look at second question. Second question में there is no solution we have to do. Simply some statements are given. What is written? Change the following statement using expression into statements in ordinary language. Like see, एक example भी आपको दिया हुआ है, Salim score R runs in a cricket match and Nalin scores R plus 15 runs. दो अलग अलग स्टेटमेंट दिया है, फिर इसको कंबाइन करके ऑर्डिनरी लैंग्वेज में क्या लिखा है, नलिन स्कोर्स 15 रन्स मोर देन सलीम। ठीक है, मतलब हमें इन शॉर्ट क्या करना है, जो दो अलग अलग स्टेटमेंट है उन दोनों को एक रिलेशन बना के लिखना है। फॉर एग्जाम्पल लेट्स लुक एट ए पार्ट। अ नोटबुक कॉस्ट ₹5, अ बुक कॉस्ट ₹3p। ठीक है, नोटबुक की कॉस्ट कितनी है, सिर्फ p, और बुक की कॉस्ट कितनी है 3p। सो व्हाट वी कैन राइट, a book costs 3 times the cost of notebook। मतलब नोटबुक और बुक में क्या रिलेशन है कि वो उसका 3 टाइम्स है। सिमिलरली वी विल लुक एट बी पार्ट। बी पार्ट में दिया हुआ है, टोनी पुट्स Q marbles on the table, he has 8 Q marbles in his box। The number of marbles in box is, इसका हम क्या बना लेंगे, the number of marbles in box is 8 times the number of marbles on table। ठीक है, टेबल पे जितना है उससे 8 टाइम्स कहाँ है, बॉक्स में। Then C part, our class has n students, the school has 20 n students। So C part, the school has 20 times the students our class has। ठीक है, स्कूल में 20 टाइम्स ज्यादा बच्चे हैं। Similarly we will look at D part. In an arrangement of dots there are R rows, each row contains 5 dots। So what we can write, the total number of dots is 5 times the number of rows। So we have converted two different statements into a single statement by relating them with each other। थर्ड क्वेश्चन भी अगर आप देखेंगे ध्यान से, बहुत ही इजी है। उसमें आपको बोल रखा है कि मुन्नूस की एज अगर x ईयर्स है, इसमें सिर्फ आपको प्रेडिक्शन करना है। अगर मुन्नूस की एज जो है x ईयर्स है, तो जो x -2 होगा वो क्या होगा, x + 4 क्या होगा, और 3x + 7 क्या होगा। तो देखिए x -2 कोई यंगर ब्रदर या सिस्टर हो सकता है ना, यंगर ब्रदर भी हो सकता है, यंगर सिस्टर भी हो सकता है।
x प्लस 4, 4 साल बड़ा, कैन बी एल्डर ब्रदर और सिस्टर, मतलब 2-4 साल का गैप भाई बहनों में हो सकता है। 3x प्लस 7 कैन बी फादर्स एज, आप इसको चाहे जो बना लें, ठीक है, फादर्स एज, मदर्स एज, लाइक अप्रोक्सीमेट आइडिया वी आर गिविंग। सिमिलरली फॉर बी पार्ट ऑल्सो यू कैन सी, बी पार्ट में भी कुछ ऐसा ही है, गिवन साराज एज टुडे टू बी y years, जिसे अगर साराज की जो एज है वो अभी कितनी है, y years है। देन द क्वेश्चन इज थिंक ऑफ हर एज इन द फ्यूचर और इन द पास्ट, फ्यूचर में पास्ट में, तो y प्लस 7 हर एज आफ्टर 7 years, ओके। सिमिलरली y माइनस 3 हर एज 3 years बैक, ठीक है। देन y प्लस 4.5, y माइनस 2.5, तो हम बता सकते हैं कि ये उसकी एज ही बता रहा है, कुछ साल पहले और कुछ साल बाद में। y प्लस 7 और जो y प्लस 4.5 है, दीज आर द एजेस, हर एज इन पास्ट लिख सकते हैं आप, इन फ्यूचर, these are the ages in future, and y minus these two ages her age in past, ये दो एज उसकी पास्ट में है और ये दो एजेस उसकी फ्यूचर में हो सकती हैं। इन सी पार्ट गिवन n स्टूडेंट्स इन द क्लास लाइक फुटबॉल, फुटबॉल चाहने वाले कितने बच्चे हैं, n स्टूडेंट्स। व्हाट मे 2n शो, व्हाट में n/2 शो, ठीक है। n/2 क्या बता सकता है और 2n क्या बता सकता है, 2n एंड n/2। यू कैन नेम एनी अदर गेम, 2n स्टूडेंट्स लाइक हॉकी और एनी अदर गेम यू कैन से। n/2 स्टूडेंट्स लाइक टेनिस, ओके। So in this way, like these two questions, we can't have exact answers. ठीक है, हम सिर्फ एक prediction दे रहे हैं, हाँ ये हो सकता है। So in this way, we have completed our exercise 11.4.